Jai Hind, everyone, respected officers. I don't want to delay the money making talk because I'm sure everyone is interested to make money. Weather outside is very cold, so I'll try to keep everyone warm with stock talks and financial knowledge. Thank you for the introduction. Basically, I'm here to share my domain knowledge on how to invest and invest in stocks, mainly in stocks, because I carry this experience from ISB Hyderabad, where my major has been finance and that too Indian Stock Exchange. So I'm sure majority of you will be knowing stock markets. You must be investing regularly. So my request to you is that now when I start discussing and give you the strategy of stock picking and making investments, we will shift back. We will shift ahead, in fact, from the mindset of PE ratio, for EPS, because normally हम देखते हैं कि stock खरीदने से पहले उसकी PE ratio क्या है, earning per share क्या है, dividend क्या है. ये हमारा traditional mindset है as traditional investors. But I want to give you a very different picture of investing money and making it big. I was discussing with Colonel Harpreet. He was talking about yoga, that it should start with a very small speed and then you should think about life as a marathon. Stock picking is also like this. It is never a sprint. That is where we go wrong. We want to double our money in 7 days, 10 days, 20 days because someone has given us a tip. They use the word tip. ये title ले लो, 10 दिन में double हो जाएगा. So stock picking is a marathon. If you want to invest in stocks, the ideal time of you staying in stocks is minimum 3 to 5 years. I've been in this market for 23 years, and trust me, I've seen the worst of this market. Kargil happened, Gulf happened, COVID happened, market lost 50%, 60%. Today also, it is at the highest point. So, if you have this longevity attitude to be in the market, nothing can go wrong. So this attitude of making money जल्दी से जल्दी नहीं चलता मार्केट में, और आपका पैसा एक साल में डबल नहीं हो सकता, because there are fundamentals, there are formats, there is thinking, there is knowledge according to which you need to invest in stocks. So Indian market, first and the foremost, I would request everyone, if everyone wants to make a note of it. First and the foremost important point which Indian market is based on is the US markets. और मैं आपको इसकी analysis दूंगा. I'll give you data points to it. Indian market depends on the US market. अब आप कभी भी अपनी हिस्ट्री उठा के देखिए इंडिया की, इंडियन मार्केट नहीं, इंडिया की आप हिस्ट्री देखिए. जब यूएस में रिसेशन हुआ है, इंडियन मार्केट्स ने बूम हुआ है. दे बूम्ड और यूएस में रिसेशन हुआ है. ये फर्स्ट इंडिकेटर है लाइफ में that now the market is going to go high. There is going to be a super economic booster, and we will make lots of money. So first recession, the modern recession in America came in 1978. And you can please refer to whatever I am speaking. You can refer to Google. You can refer to the historical data points. It will tell you that what I'm speaking is making sense. So 1978 में recession आया US में. 1982 was the first year when Indian markets started speeding up. Then again recession hit somewhere about 1999. In 2002, again the market started rising up. Then Lehman Brothers happened in 2008. Market again, crashed. America was in recession. Then post 2 years, Indian market again boomed. Now already the recession is there, and the market is booming. You look at the market; it is at almost the best high, 64,000, 60,000. So you'll be wondering why this happens. ऐसा क्या है कि US वाले तो बेचारे गोरे तो रो रहे हैं और हमारा पैसा बढ़ रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएस में ऑयल प्रोडक्शन, जो कच्चा तेल जिसको कहते हैं, क्रूड कहते हैं, क्रूड ऑयल बहुत हाई है. तो जब रिसेशन आता है, क्रूड ऑयल इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स अमंगेस्ट 2-3 पिलर्स which plays a very important role
where the market will go or where the market is. One of them is inflation, one of them is crude oil, one of them is Fed cut rates, one of them is interest rates in India. होता क्या है, जब क्रूड ऑयल, जब भी रिसेशन आता है, क्रूड ऑयल 60 to 70% अमेरिका में गिर जाता है, उसके रेट बहुत गिर जाते हैं. इंडिया इज अ कंट्री विच टोटली इम्पोर्ट्स ऑयल. हमारी अपनी ऑयल प्रोडक्शन है, हम बाहर से सारा तेल लेते हैं, तो हमें वो तेल सस्ता मिलता है. जब हमें वो सस्ता तेल मिलता है तो हमें एक नेशनल गिफ्ट मिलती है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है, जो एक्विजिशन की कॉस्ट है क्रूड ऑयल की, वो 3 से 4% हमारी जीडीपी में जुड़ जाती है. हमारी जीडीपी 3 से 4% बैठे बैठे ग्रो हो जाती है. हमें उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती. द प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव टू डू एनीथिंग, द पॉलिसी मेकर्स डजंट हैव टू डू एनीथिंग. अमेरिका गिव्स अस. उनका रिसेशन हमारा 3-4% जीडीपी अपलिफ्ट. जीडीपी अपलिफ्ट का मतलब होता है जब रिसेशन आता है तो फेड, जो हमारे यहाँ आरबीआई है, वहाँ फेड पॉलिसी डिटरमाइन करता है फिनेंस की. तो फेड रेट्स कट करना शुरू कर देता है, या वो रेट्स कट करता है या वो एक्सट्रीम में डॉलर्स को प्रिंट करना शुरू करता है. और फिर आस्ते आस्ते जब फेड रेट्स कट करता है, हमारी जो फिस्कल डेफिसिट होता है कंट्री का, वो आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाता है. बिकॉज हम अपने पेट्रोल का सारा जो लोड है वो गवर्नमेंट हम पे डाल देती है और वो अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना शुरू कर देती है. तो जीडीपी 3-4 पॉइंट्स हमारी सीधी बढ़ जाती है. इसलिए हमारी जो मार्केट है वो ज्यादा अच्छा रिएक्ट करती है जब अमेरिकन रिसेशन शुरू हो जाता है. देन अमेरिका डज अ वंडरफुल थिंग, दे कॉल इट टेपरिंग. जो एक्सेस में आप डॉलर्स प्रिंट करते हो परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए, एक्सेस डॉलर्स प्रिंट करने का क्या मतलब, मार्केट में ज्यादा पैसा आ रहा है. तो अमेरिका बहुत स्मार्टली इस चीज को टेपर करना शुरू कर देती है. वो डॉलर्स को वापस लेना शुरू कर देती है. कैसे? अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है. तो जो आपको लोन पहले 5% पे मिल रहा था, अब वो आपको 7 या 8% में मिलेगा. तो पैसा सक होना शुरू हो जाता है. सो इंडिया में भी आरबीआई आस्ते आस्ते इंटरेस्ट रेट्स को कम ज्यादा करता रहता है, जिससे मार्केट पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन मार्केट which you've not invested and you want to start your investment, always look at this great factor of American recession. And I'm very happy that now that American recession is happening, is in the process, and I'm here, I'm telling you this indicator that this is the right time to get into markets, because now Indian economy will boom because 3 to 4% of GDP is being gifted by America to us. Secondly, this is one thing of the this is one observation. So you should invest. Second thing is, Indian economy is very easy to understand. Why? Because actually we are a poor country. So हमारी कोई इकोनॉमी ग्रेट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अमेरिकन इकोनॉमी जैसी. हमारी पर कैपिटा इनकम आज भी $2,000 के आसपास है. सो हम एक डेवलपिंग कंट्री है, पुअर कंट्री है, तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से मैनेज होती है, चलती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इन लास्ट 5-6 years हमारी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गई है. सो इफ आई हैव टू टेल यू एज अ फिनेंस प्रोफेशनल, एवरीवन सिटिंग हियर इज अ प्रोफेशनल इन हिज ओन वे. इफ आई हैव टू टेल यू समथिंग लाइक अ फिनेंस प्रोफेशनल, दिस इज द बेस्ट टाइम इंडिया हैज फॉर नेक्स्ट 10 to 15 years. अगले 15-20 साल इंडियन इकोनॉमी के, इंडिया की जीडीपी के, इंडिया एज अ कंट्री के, इंडियन मार्केट्स के बेस्ट टाइम. वी आर लकी that we are in the best times when this market will deliver the best results. Shares बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे. अब आपका सबका क्वेश्चन है कौन से शेयर्स देंगे. ये सभी सोचते हैं कि कौन से वो शेयर्स होंगे जो रिजल्ट देंगे. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इन इंडिया in 2010 there were top 50 companies which was making 60% of the wealth. Top 50 companies making 60% of the wealth, and in India there are about 10,000 15,000 companies listed in BSE, right? Bombay Stock Exchange. हमारी दो exchanges है, BSE Bombay Stock Exchange, NSE National Stock Exchange. 2015 में there are around 40 companies making 80% of the wealth. In 2021 there are 21 companies only which makes 80% of the wealth in stock market. Just 20 companies.
So idea is what? So this data which I'm telling you, it is there. If you open the website of Ministry of Corporate Affairs and goes towards the left, there's a data of performance of companies. So you can just take it out, that data. I have also studied that data from there only. So it's very simple. 20 कंपनीज इंडिया में 80% वेल्थ बनाती है. तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इन 20 कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है. हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी कि हम सारी कंपनीज खरीद लें और वी रीच नोवेयर, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज. बट इन इंडिया द मेंटालिटी इज कोई भी कुछ बोल देता है हम खरीद लेते हैं. दैट इज अ रॉन्ग वे टू एक्चुअली बाय स्टॉक्स. So in stocks, first, the most important thing is you need to have 3 pillars. 3 pillars is very important when you determine what to buy and when to buy. I'll talk later. What to buy. The first is growth-oriented companies. The companies which are growing. I'll give you in detail what growth means. But just to give you an overlook, कौन सी वो companies हैं जो grow करती जा रही हैं over the years. Second, कौन सी वो कंपनीज हैं जिन कंपनीज के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये किसी कंपनी को खरीदने के लिए, वो कौन सी कंपनी है जिस कंपनी के पास कैश फ्लोज बहुत ज्यादा हैं. आई वाज गिविंग एन एग्जांपल. कैश फ्लोज मींस द मनी इन योर वॉलेट. सो इफ यू गॉट 1000 रुपीज, you can go out to Srinagar and do a shopping of 800 because you have 1000 rupees. But if you got 500 rupees, if you shop 1000, 99% time you will be in debt. So जिन कंपनीज के पास हाई कैश फ्लोज है, रिच कंपनीज हैं, आप उन कंपनीज को हमेशा ध्यान दो. तो सबसे पहले ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज, सेकंड इज कैश फ्लो कंपनीज, एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बाय अ कंपनी, दोज कंपनीज व्हिच हैव अ मोट. मोट मींस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिनको कंपटीशन तबाह ही नहीं कर सकता, हाथ ही नहीं लगा सकता, ऐसी 20 कंपनीज हैं. सो अगर ये 3 चीजें, कैश फ्लोज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच इज मोटेड कंपनीज, की आप हमारे इंडियन आर्मी के आसपास कोई नहीं आ सकता, वैसे इन कंपनीज के आसपास भी कोई नहीं आ सकता. आई वुड पुट इट दिस वे दैट दे आर सो स्ट्रॉन्ग एंड देयर कैश फ्लो, देयर ग्रोथ, इट्स वेरी गुड. सो यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई मेनी थिंग्स. इन इंडिया हम सुपर इंटेलिजेंट हो जाते हैं. हम देखना शुरू कर देते हैं यार इस स्टॉक की 100 डे मूविंग एवरेज क्या है, इसकी 200 डे मूविंग एवरेज क्या है, इसकी 50 डे मूविंग एवरेज क्या है, इस स्टॉक की प्राइस क्या है, इसकी पीई रेशियो क्या है. ट्रस्ट मी, ऑल दिस इज शैम. आपको ये चीजें देखनी ही नहीं है. स्टॉक प्राइस कैनॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट द स्टॉक. आज एशियन पेंट का स्टॉक 2700 है. आप में से कईयों को लग रहा होगा बहुत महंगा है, आपको कईयों को लग रहा होगा बहुत सस्ता है. सो बेसिकली इट डजंट टेल यू एनीथिंग. What is BSE and NSE? What is stock market? It is a slave of corporate earnings. BSE NSE है क्या? कंपनीज है इकट्ठी, इतनी सारी कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती हैं या डेट में होती हैं, उन सब कंपनीज, जब वो सब कंपनीज इकट्ठी हो जाती हैं और अपनी अर्निंग्स को डिक्लेयर करती हैं, तो स्टॉक चलता है. तो स्टॉक प्राइस डजंट टेल यू एनीथिंग. आप अपना स्टॉक प्राइस देख के सिर्फ टाइम आप खराब कर रहे हो, और इट वुड बी लाइक मेंटल सेटिस्फेक्शन की ये चीज़ सस्ती है, ये चीज़ महंगी है. आज अगर एशियन पेंट 2700 है तो किसी टाइम 3800 भी था, किसी टाइम वो 10 रुपये का भी था. तो वो स्टॉक प्राइस कुछ नहीं बता रही है आपको बता रहा है उसकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स, उसके रिजल्ट्स, उसके नेट मार्जिन, उसका प्रॉफिट. तो आपको 3 ही चीज़ें देखनी है. ग्रोथ, वन फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड थिंग इज योर कैश फ्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग इज मोट कंपनीज, कैश फ्लोज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अगर आप ये 3 चीजें देखते हो तो यू कैन बाय अ स्टॉक. नाउ फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिलेटेबल टू मोटेड कंपनीज, ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी इन द कंपनीज हु आर लीडर्स इन देयर सेगमेंट्स. दैट्स अ प्रिंसिपल थंब रूल पीपल डोंट फॉलो. हमें लगता है यार ज्वेलरी में टाइटन सबसे बढ़िया कंपनी है, सबको पता है, मैं भी वही बता रहा हूँ जो आप सबको पता है. लेकिन यार टाइटन 3-1000 का है, गीतांजलि ज्वेलर्स ले लेते हैं 700-800 रुपए का है, ये ज्यादा ले लेंगे. दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग विद द लीडर. कहते हैं कि वो घोड़े की जगह जोकी पे पैसा लगाते हैं. सो उसी हिसाब से आपको जो पैसा लगाना है वो लीडर्स पे लगाना है. आप कभी भी सेकेंड बेस्ट पे स्टॉक मार्केट में प्लीज मत जाइए. ऑलवेज गो विद द लीडर्स. व्हाई विद द लीडर्स? रेफर बैक टू 3.
refer back to 3 points which I made earlier. Leaders have a competitive advantage which no one can touch. Gitanjali Jewelers can be the best company in the world. They cannot touch Titan. You know, Indigo Paints, Berger Paints can be the best in the world. They cannot touch Asian Paints. 2-3 adhesive companies can be the best. They can never touch Pidilite. Pidilite, few people don't know, it is Fevicol. They cannot touch it. There can be 100 NBFCs, but they cannot touch Bajaj Finance. So these are those companies who have created such a large scale moat in their life. आप इनको टच ही नहीं कर सकते. Small company, I'll give you an example. 130 rupees की चीज बनाती है हवाई चप्पल. I was discussing this with Colonel Harpreet also yesterday. 130 रुपए की चप्पल बनती है. कंपनी का नाम है रिलैक्सो. पूरे हिंदुस्तान में 3 कंपनीज हवाई चप्पल बनाती थी. बाटा, इंटरनेशनल कंपनी, रिलैक्सो एंड पैरागॉन. वही चप्पल बाटा 450 रुपए की बेचती थी. रिलैक्सो वही चप्पल अमेजन पे 95 रुपए से 120 रुपए में बेचती है. पैरागॉन वही चप्पल 250 रुपए में बेचती है. लेकिन इसमें मोट किस कंपनी की है? रिलैक्सो की. 80% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ चप्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल, इज विद रिलैक्सो. रिलैक्सो के पास इतना कैश फ्लो है कि उन्होंने अपनी 17 कंपनीज खुद खोल दी. बाटा ये चीज जॉब वर्क के रूप में बाहर से कराता था कि आप मुझे बना के दो सब कुछ. गुड मॉर्निंग सर, लवली टू हैव यू हियर सर. सो बाटा यही चीज बाहर से करवाता था. तो रिलैक्सो ने क्या करा? इन्वर्ट शुरू कर दिया कि हम अपनी कंपनी में बनाएंगे, प्लास्टिक लाएंगे, उसको अच्छे से साइक्लिक करेंगे और बनाएंगे. उस 120 रुपए की 100 रुपए की चप्पल में द प्रॉफिट मार्जिन विच रिलैक्सो मेक्स इज 60 to 70%. 100 रुपए की चप्पल में 60 रुपए रिलैक्सो कमाता है. दिस इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो ना बाटा ब्रेक कर पाया ना पैरागॉन ब्रेक कर पाया. सो दिस इज अ लाइव एग्जांपल आई एम गिविंग यू. 150 करोड़ हिंदुस्तान में 50 करोड़ लोग चप्पल पहनते हैं और ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. कानपुर में लेदर बनता है, दिल्ली के सदर बाजार में बनता है. और रिलैक्सो ने आप देखो इसको ब्यूटीफुली इनवर्ड जर्नी करके अपने कैश फ्लोज बढ़ा लिए. सो देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज रिटर्न ऑन कैपिटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिटर्न ऑन कैपिटल. मैंने आपको 100 रुपए दिया, आपने मुझे 1 साल बाद 125 रुपए दिया वापस. मतलब 25 रुपए मैंने आपको 100 रुपए का कैपिटल दिया, आपने मुझे 25 रुपए रिटर्न कर. ऐसी 16 कंपनीज हैं जिनकी ROC जो है रिटर्न ऑन कैपिटल इज अबव 30-35%. और ये वो 16 कंपनीज हैं जो ग्रोथ भी कर रही हैं, जिनका हाई कैश फ्लो भी है और इनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है. तो हमने अपने डेटा को 20,000 कंपनी से पहले हम 20 पे लाए, 20 से अब हम 16 पे लाए. ये वो 16 कंपनीज हैं जो हम सबको अमीर बना सकती है. सो लाइफ में देयर आर कार्मिक कनेक्शंस. कोई धर्म का कर्म करता है, कोई कुछ करता है. फॉर मी, मेरे को लगता है कि यू नो आई शुड बी मेकिंग पीपल रिच. तो मेरा फाइनेंशियल कर्मा शुड बी in such a way that people should remember me that he made us rich. So you have only 16 companies in India to bet on, and these 16 companies, if you stay invested for at least 3 to 10 years, these companies will go 10x. I'm serious, 10x. It is only that this is a marathon, this is not a sprint. This is just a marathon. आपका जो narrative है स्टॉक पिकिंग का, वो मैंने आपको बता दिया. 3 चीजें. आपकी जो पेशेंस और लॉन्गिविटी है वो डिटरमाइन करती है कि आप किस हद तक इस कंपनियों में पैसा कमा सकते हैं. सो वॉट एवर एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू इज नॉट एनी काइंड ऑफ स्टॉक रिकमेंडेशन. इट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज दैट आई एम. So this is a disclaimer because I have also invested in these companies. So I'm not asking you to invest your money in whatever I am saying. I'm just giving you an example for education purposes. There is something known as sector rotation in India. कि कभी स्टील चलता है, कभी कोल चलता है, कभी IT चलता है, बहुत सारा हम देखते हैं. So your portfolio has to be not more than 10% in any sector, whatever may happen. अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप IT में 10 रुपए ही लगाओगे, चाहे IT कितना भी बूम कर रही हो. आप पेंट्स में 10 रुपए ही लगाओगे, चाहे पेंट इंडस्ट्री कितनी ही बूम कर रही है. सो दीज आर दोज प्रिंसिपल्स यू शुड चूज while picking a stock.
आपके पास नॉर्मली 15 से 16 स्टॉक्स होने चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो आप पहले तो उनको ट्रैक नहीं कर पाओगे। You need lot of time, and my experience with all Fauji officers across the country, I keep visiting almost all the cantonments, that they have so much of work, they don't have time to manage their finances on stocks and mutual funds. So आपके लिए बहुत मुश्किल है, कहीं नेट चलता है कहीं नहीं चलता है। So making money needs time और थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए। But trust me, इंडिया में we are blessed. Indian stock market is such a market which is very easy to manage, and trust me, the way our economy is coming up, हम सब अच्छे से अमीर हो सकते हैं। दिस इज वन कंट्री विच कैन एक्चुअली मेक अस ऑल रिच इफ वी आर देयर इन ग्रोथ एंड लॉन्गेविटी। 10% से ज्यादा आप प्लीज अपना पैसा किसी भी स्टॉक में मत लगाएं। जब इकोनॉमी बूम करती है, जो अभी बूम कर रही है, सबसे पहला सेक्टर जो बूम करता है इकोनॉमी पे, जो हम कहते हैं वी कैन फॉल बैक ऑन वन सेक्टर, इज बैंकिंग। सो बैंकिंग इज द बिगेस्ट थिंग which happens when an economy booms. So my request to you is, if you want to invest today and you ask me, again for the educational purposes, I'm not recommending anything, which bank should I buy? So I would say, this is the time to pick ICICI. This is the time to pick HDFC. Then there is a very small bank which you can pick, which is around 60 rupees, IDFC First Bank. These are those banks which are growing at 20 to 25% every year. Their loan book is growing. बैंक पैसा कैसे कमाता है? एक तो सेविंग्स है, लेकिन वो उसको आप इंटरेस्ट देता है, एफडीज वो भी इंटरेस्ट देता है। पैसा कैसे कमाता है बैंक? लोन्स देंगे, टाइप ऑफ लोन, जितने बैंक लोन देगा हम उस पर इंटरेस्ट देंगे, उससे पैसे कमाता है। तो अगर आप देखिए अभी आपकी इन्फ्लेशन, हम बैंक में एफडीज कराते हैं सब लोग खुशी होके। आई हैव बीन लाइक अगेंस्ट एफडीज, दो for rainy days, which normally in Fauj rainy days are not there because the job is secure. In corporate rainy days keep coming. So rainy days के लिए if you have about 6 to 7 months of your expenses, अगर आपके घर का खर्चा 1 लाख रुपए है और 6 महीने आपका खर्चा 6 लाख रुपए हो गया, इतना पैसा आपका एफडी में होना चाहिए जो इजीली डाइल्यूट हो जाए। इसके अलावा आपके पास जो भी पैसा है, you should be invested in market and especially in banks at the moment. आप एफडी में क्यों पैसा ना लगाओ? क्यों ना लगाओ? बिकॉज आज की डेट में इन्फ्लेशन, महंगाई हिंदुस्तान में अराउंड 6.6 to 7% है। ये महंगाई हिंदुस्तान में अगर आप पिछले 10 साल का डेटा उठा के देखो तो 4 से 6.25% के बीच रहती है। आपकी बैंक एफडी भी आपको 5-6% देती है, आजकल 7% दे रही है। लेकिन हमारी माइंड क्या है कि यार बैंक एफडी 7% देती है, यार मैं क्यों रिस्क लूँ, मुझे नहीं कमाना 15% 16%, मैं ठीक हूँ। सो आपने अपॉर्चुनिटी को नो बोल दिया, लेकिन आप ये भूल गए कि आपने 7% कमाया नहीं है, वो तो महंगाई 7% है, तो आपके पास तो पैसा ही नहीं, ऊपर से आपकी बैंक एफडी पे टैक्स भी लगेगा, तो आप तो टैक्स भी पे कर रहे हो। सो बेसिकली आप नेगेटिव में चल रहे हो। दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड बी इन स्टॉक मार्केट। बैंक की एफडी 12.5 साल में पैसा डबल करती है, थंब रूल, सीधे 12.5 साल में। स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास 10 से 15 अच्छे स्टॉक्स हैं जिनकी पिलर्स मैंने आपको बताया, इट डबल्स योर मनी इन 4.5 years. That's simple. You can pick up any stock historically, whatever names I have given, go to Google, check them. You will realize that these stocks have doubled in 4.5 years, whereas your FD is doubling in 12.5 years. So आप पैसा भी गवा रहे हो, आप टाइम भी गवा रहे हो. So it is better to be in market with good stocks rather than being in bank FD. So this mindset in India has to be broken, and this can be only broken when people like us start investing and people like us start talking about it. In India, if you are making your money grow at 12.5% in a year, you are a king. And if you are making your money grow at 20%, you are an emperor, which bank will never give you. So in coming time, what is India's most important strength at the moment, which used to be our weakness years back, is population. It is a consumption market. This population has helped us to grow. US wants to park its good to us. All the countries look at India as a big opportunity because इतनी सारी population है, इतना rural area है, इतनी consumption है. ये वो time है जब आपको consumption sector को देखना है और इसके stocks में invest करना है. It is a very simple rule to buy a stock. We were discussing.
आप वो स्टॉक खरीदो जो चीजें आप यूज करते हो। बहुत सिंपल है। हमें माई जॉब इज टू मेक इट वेरी सिंपल। आई डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट इट। यू गेट अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग यू पिक अप इज योर टूथब्रश। विच इज योर टूथब्रश? आइदर इट इज कोलगेट और इट इज हिंदुस्तान लीवर। द नेक्स्ट थिंग इज यू वांट टू बेथ with a soap. Either it will be Lux, it will be Dove. You don't observe it in normal life, but look at, you want to shave, what will you do? You will use Gillette blade, you will use Gillette foam. What is the next thing you would do? You would either have a Hawaii chappal or you will use a Bata shoe or a Hush Puppy shoe. What is the next thing? You want to wear a Alan Solly, you want to wear a Louis Philippe, whatever you want to wear, Arvind, Aditya Birla Capital Fashions. आप अगर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये लिस्ट बना लो कि वो कौन सी चीजें हैं जो मैं पूरा दिन यूज करता हूं और मेरी वाइफ क्या यूज करती है। स्टॉक पिकिंग इज चाइल्ड्स प्ले, मनी मेकिंग बिकम्स अ चाइल्ड्स प्ले। नॉर्मली वी कॉम्प्लिकेट आवर लाइफ। सो इन इंडिया एवरी हाउस होल्ड, इफ इन इंडिया एवरी हाउस होल्ड यूज 10 थिंग्स इन अ डे, 7 थिंग्स आर फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर। सो यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन हिंदुस्तान लीवर। It's a very simple logic. We don't realize it. तो 10 चीजें आप यूज कर रहे हो पूरा दिन में, 7 हिंदुस्तान लीवर की है। और ये ऐसी कंपनीज है FMCG की, ITC, हिंदुस्तान लीवर, जो नेस्ले, ये ऐसी 3 कंपनीज हैं जो कभी भी अपनी रेवेन्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आई टेल यू व्हाट, आज अगर बजट में टूथपेस्ट बढ़ जाती है, 2 रुपए बढ़ गई, हिंदुस्तान लीवर के पास competitive, I started this discussion by competitive advantage, इतनी strong growth है, they are moated companies, that वो 2 रुपए कस्टमर को पास कर देती है, बिकॉज उसे पता है कि अगर वो 2 रुपए अपनी टूथपेस्ट, अपनी क्रीम कुछ बढ़ा देगी तो भी कस्टमर खरीदेगा। नॉर्मली छोटी कंपनीज जो हम सोचते हैं यार ये खरीद लेते हैं, यार ये बेटर है, छोटी है, सस्ती है, वो कंपनीज क्या करती हैं, वो उनके पास इतनी बोल्डनेस नहीं होती, इतना करेज नहीं होता कि वो वापस जाएं और वो कस्टमर्स को बढ़ा दें। बिकॉज द कस्टमर इन इंडिया, प्लीज अंडरस्टैंड, वी एज इंडियंस आर नॉट लॉयल कस्टमर्स। वी आर नेवर लॉयल टू अ ब्रांड। हमें जो चीज दिखती है, हमें लगता है यार ये ठीक है, वोडाफोन वाला एयरटेल में चला जाता है, एयरटेल वाले को लगता है जियो ले लो। वी आर नॉट दैट ऑनेस्ट कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर्स। सो दीज कंपनीज ये प्राइस बढ़ा नहीं सकती, तो इनके मार्केट में इनके मार्जिन स्क्वीज होने शुरू हो जाते हैं। वेरएस कंपनीज लाइक नेस्ले, कंपनीज लाइक ITC, अभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी 16%। सो ITC इज डूइंग व्हाट, वो 16 का 16% कस्टमर देगा। मैं अपनी ग्रोथ नहीं खराब करूंगा, मैं क्यों अपने मार्जिन कम करूं। लेकिन छोटी कंपनीज नहीं कर सकती है, तो आपको कभी भी छोटी कंपनी नहीं खरीदनी, आपको हमेशा लीडर्स के साथ जाना है। क्रूड महंगा होता है तो एशियन पेंट और पिडीलाइट पे बहुत बड़ा फर्क आता है। व्हाई? बिकॉज एडिसिव्स एंड पेंट इंडस्ट्री किस पे बनती है? क्रूड ऑयल पे, कच्चे तेल पे बनती है। तो जब भी क्रूड महंगा होगा, आप देखोगे एकदम से एशियन पेंट गिरने लग गया। दैट इज द टाइम टू बाय अ स्टॉक। एंड जब क्रूड वापस आता है, आप देखोगे एशियन पेंट्स बिल्कुल नॉर्मली भाग रहा है, पिडीलाइट भी भाग रही है। हम लोग पैनिक कर जाते हैं ये सोच के कि स्टॉक गिर रहा है। जब स्टॉक गिरता है, that is a blessing, that is an opportunity, we should get into the market. One such big opportunity which many of us, majority of us missed was COVID. COVID में 40 से 45% मार्केट गिरी। जो स्टॉक HDFC का 1600 रुपए का था, वो स्टॉक 450 रुपए का कोविड में आ गया। बिकॉज एवरीवन थॉट दुनिया खत्म हो गई है। इस दुनिया को कारगिल ने खत्म नहीं करा, इस दुनिया को गल्फ वॉर ने खत्म नहीं करा, इस दुनिया को कोई खत्म नहीं कर रहा। ये हमारी इनसिक्योरिटीज है। मार्केट में बहुत बड़ा करेज, बहुत बड़ा दिल चाहिए रहने का, और ये मार्केट आपको हमेशा रिवॉर्ड करेगी। द बेस्ट पार्ट इन दिस मार्केट इज इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग मार्केट, प्लस दिस मार्केट विल ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटी टू गेट इन। इट विल ऑलवेज गिव यू, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी हिंदुस्तान में चीज होगी जो मार्केट 15 से 20% गिरेगी, और जब वो 15 से 20% मार्केट गिरती है, दैट इज द टाइम to get into market and stop investing in FDs because such opportunities come rare. So if you have parked money, आपके पास कम से कम 5 लाख रुपए ऐसा होना चाहिए जो आप स्टॉक मार्केट्स में लगा सको। आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ पीपल सिटिंग हियर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। यू कैन पुट करोड्स आल्सो,
जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि 5 लाख का लिक्विड कैश आपके पास ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम बोलते हैं मार्केट गिर गई, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़ा है, आज मैं सारा लगा दूंगा, क्योंकि अब मार्केट दोबारा कभी नहीं गिरेगी, अब तो ये ऊपर ही जाएगी, तो हम अपना पूरा 5 लाख रुपए मार्केट में लगा देते हैं। दैट इज द मिस्टेक वी मेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर अमाउंट you have to divide this amount into 5 installments and invest. आज आपने एशियन पेंट 2700 में ले लिया, 1 लाख रुपए का, आपके मन में है कि मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा, आपने 1 लाख का लगा लिया, sit back, relax. This Asian paint will again come somewhere about 2500, it will also go to 3500. You will again get an opportunity. That is the time when you have to put your next 1 lakh. Then again put it, then again stay there. These opportunities always come in Indian market. Because our economy is growing and यहाँ पे छोटी से छोटी चीज भी मार्केट को स्ट्रेस देती है। Indian stock markets are very sensitive. They are emotional markets. They are not American markets who work on corporate earnings and all. यहाँ पे छोटी छोटी चीज भी स्ट्रेस देती है। यहाँ पे टर्की में अर्थक्वेक आ जाता है, यहाँ पे चाइना +1 हो जाता है तो भी मार्केट गिरती है। इंडिया का आने वाला जो टाइम है, अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन, द नेक्स्ट बिग थिंग हैपनिंग इन इंडिया इज केमिकल इंडस्ट्री। चाइना +1, आपने बहुत न्यूज़पेपर्स में सुना होगा कि यार ये चाइना +1 कुछ बोलते हैं। चाइना +1 का मतलब है कि सबसे पहले चीप लेबर, चीप इजी कॉटेज इंडस्ट्रीज कहाँ थी दुनिया में? चाइना में। सो जो बिग जायंट्स हैं, अमेरिकन जायंट्स, यूरोपियन जायंट्स, दे स्टार्टेड सेंडिंग मनी, दे स्टार्टेड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग देयर स्मॉल हब्स इन चाइना बिकॉज यू गॉट चीप लेबर। नाउ आफ्टर कोविड थिंग्स चेंज्ड, सो चाइना बिकेम चाइना +1. Which is that +1? It is India. India offers that same cheap labor. The laws of opening your shop is very easy now. So people who are in China are now coming and investing in India. For example, iPhone पहले चाइना में बनता था, अब इंडिया में बनने लग गया। तो वो सारा जो बिजनेस है वो यहाँ आया। सो चाइना का सबसे बड़ा जो धंधा जिससे चाइना पैसे कमाती है, जो जिसमें हम बोलते हैं हिंदी में कहते हैं गल्ला, किससे भरता था? वो केमिकल इंडस्ट्री से। चाइना का मोनोपोली था। अब ये मोनोपोली आस्ते आस्ते इंडिया में आ रहा है, और इससे कौन कौन सी कंपनीज हैं जो पैसा कमा रही हैं? डिवीज लैब, 70% पेन किलर्स जो दुनिया में बनती है उसका जो सॉल्ट है वो डिवीज लैब देता है। दीपक नाइट्रेट, एल्काइल अमीन्स, बालाजी अमाइंस, these are those companies which going forward will be 2x, 3x, 5x in coming time. Why? Because they are the main suppliers of chemicals. And China बंद होने के बाद chemical industry इंडिया में boom करना शुरू करने वाली है. Already these stocks, if you look at historically these stocks, about 2 years, 3 years back, these stocks were somewhere about 500, 700. Now they are 3,000, 3,500. Still they are cheap. As I said, don't look at the stock price, look at the business model. So demand and supply plays a very important role when you buy a stock. भाई किस चीज की डिमांड है और सप्लाई कैसी है ये डिटरमाइन करती है. सो अगर आपको फॉर एग्जांपल कैन आई यूज द मार्केट विद योर परमिशन सर? ओके ग्रेट. सो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल हाउ टू डिजाइन योर पोर्टफोलियो. क्योंकि अभी तक आपको लग रहा है यार ये तो ज्ञान है, नाम बताओ कंपनीज के पैसा कहाँ लगाना है. अभी सबको ये होता है नाम बताओ यार, ये तो हम पैसा कमाना है. So if you got 1 lakh rupees, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप मार्केट में 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो कौन सी कंपनीज हैं जहां आपको इन्वेस्टमेंट्स लगानी चाहिए बेसिस ऑन दी पिलर्स ऑफ अगेन हाई कैश फ्लोज, मतलब कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है. मेरी जेब में बहुत पैसा है, मैं शॉपिंग कर सकता हूं, मैं नई फैक्ट्रीज लगा सकता हूं, मैं अपने मटेरियल को खरीद सकता हूं, मैं बेस्ट टेक्नोलॉजी ला सकता हूं. और फॉर एग्जाम्पल, फॉर जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल एंड इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, पीपल थिंक दैट एशियन पेंट इज अ पेंट इंडस्ट्री एंड बजाज फाइनेंस इज अ फाइनेंस इंडस्ट्री. आई एम वेरी सॉरी, they are digital industries. In 1982, Asian Paint was the first company to buy a supercomputer. Even the government of India didn't have the supercomputer. 1982. Bajaj Finance and Asian Paints दो ऐसी कंपनीज हैं जो पेंट और फिनेंस डेटा के हिसाब से करती हैं. एशियन पेंट को पता होता है
कि मेरा कौन सा शॉपकीपर किस जगह में कितनी रोटेशन सेल्स करता है बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर। डेटर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेटर्स डे मतलब जिनको मैंने माल सप्लाई करा है वो मुझे पैसा कब देंगे। नॉर्मली डेटर्स जो मार्केट में क्रेडिट होता है वो 90 दिन का होता है कि मैंने 1 लाख रुपए सर आपको दे दिया, आप मुझे 3 महीने में वापस कर देना। कंपनीज लाइक एशियन पेंट, कंपनीज लाइक रिलैक्सो, कंपनीज लाइक अमृतांजन द बाम कंपनी, दे आर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनीज। कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, देयर डेटर्स डे 30 डेज, 30 दिन में पैसा आता है। तो आपको जो पैसा 3 महीने में आप मुझे दे रहे हो और आप मुझे 30 दिन में दे रहे हो, तो मेरी पॉकेट भर गई, मेरा कैश फ्लो आ गया। सो कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर longevity is very important and your growth is very important. So if we have to cover all these things in a simple portfolio जिसमें ये सारी कंपनीज फिट इन होती है, तो we should look at, सबसे पहले we should look at consumption, we should look at banking, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो इंडिया में अब होने वाली है। इफ यू आस्क मी, PSU बैंक बहुत बढ़ गए, बैंक ऑफ बड़ौदा इतना बढ़ गया, SBI बढ़ रहा है, सो आई हैव नो आंसर टू इट बिकॉज PSU बैंक्स में जब they pull the carpet behind, then it becomes really scary. So my advice, I can only advise, don't get into PSU bank so heavily that you never know that कई बड़े fund managers failed in PSU banks because these are not those banks which are managed digitally high. Banks like HDFC, ICICI, Kotak Mahindra, they are managed very, very tightly. Their quality, their compliance is so strong that things, 99.9% things cannot go wrong. They are highly digital companies. So Asian Paints, Bajaj Finance, banks, आप इनको इंडस्ट्री में देखो, they are high digital companies. इनके पास इतना डेटा है, ये अपने डेटा के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं मुझे क्या बेचना है। इनकी प्राइसिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। So 1 lakh of portfolio. So first is the banking sector. This is the backbone of any country, any economy. So my recommendation, my examples, if I would have to invest my 1 lakh, I would invest 10,000 rupees either in HDFC or ICICI, Kotak, else IDFC first. This is how I would design my portfolio. It is not necessary that you have to design it. I'm just giving my suggestion how I do that. The next big sector is consumption. Consumption का मतलब खपत, जो माल आया वो बिक गया, ये सबसे बड़ा सेक्टर है। इसमें आप देखिए, आप अगला 10,000 रुपए इसमें लगाइए। इसमें मेन चीज जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली, गुड टू गो, इसमें मेन अच्छा आप इधर रख, That side will be better. It will be visible on camera also. but ये नहीं side पर. With camera you can turn it. देखो camera को. okay, can I? Yes, yes, please. Okay. So the next big thing in life in India is consumption. हमारी पॉपुलेशन, हमारा सब कुछ बहुत स्ट्रांग है। आंखें बंद करके सबसे ज्यादा कौन से मार्केट लीडर्स हैं कंजम्पशन में? HUL, ITC, Titan, these are all high consumption growth sectors. In India, the jewelry market is still unorganized. When I say unorganized means 100 में से सिर्फ 12 लोग हैं जो ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदते हैं। They will go to Titan, they will go to Kalyan Jewellers, they will go to Javeri and all. Rest is हमारे अपने घर का गोल्ड स्मिथ है जिससे ट्रेडिशनली हम सोना खरीदते हैं, हम ये ऐसे चलता है। तो आप ये देखिए, आस्ते आस्ते टाइटन ने इस कंट्री में 102 स्टोर खोल दिए बिकॉज इट्स सच अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, दे आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज इट। 102 स्टोर खोल दिए। टाइटन की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 135 रुपए है। आपने 100 रुपए दिया, अगले साल 35 रुपए आपको वापस कर रहे हैं। सो ये आने वाले टाइम में ज्वेलरी मार्केट इज गोइंग टू बिकम हाईली ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज द टाइम यू शुड लुक एट दिस सेक्टर एंड डोंट मिस द बस। डोंट थिंक कि यार ये 2000 का स्टॉक है, ये 2200 का है। स्टॉक प्राइस आपको कभी भी कुछ नहीं बताएगा। कंपनी की कॉर्पोरेट अर्निंग आपको बताएगी कि कंपनी में दम है कि नहीं है और कंपनी की ग्रोथ कहां तक जाएगी।
So they are expanding. So HUL, ITC, Titan. These are some stocks on consumption sector. तो आपने 10,000 यहाँ लगा दिया. उसके बाद आप आ गए फुटवेयर मार्केट में. So footwear market again growing at a massive scale, 35% per year. 35% ये मार्केट ग्रो कर रही है हर साल. तो जो कुछ नहीं पहनते हैं वो रिलैक्सो पहन रहे हैं, जो रिलैक्सो से बेटर है वो रिलैक्सो का फ्लाइट पहन रहे हैं, जो उनसे अमीर है वो हश पपीज पहन रहे हैं, जो उनसे अमीर हैं वो बाटा पहन रहे हैं. सो गांव के जो लोग हैं जो ऐसे ही घूमते थे वो जब शहर में शिफ्ट कर रहे हैं, ये मार्केट 35% से ग्रो कर रहा है. So you should look at stocks like Relaxo and Bata. Now, if you have looked at the budget, this budget was one of the best. As a finance guy, I must tell you, this is one of the best budgets ever came in India. There can be some pain areas for few people, but normally it is one of the most passionate budgets the finance minister has delivered. इस बजट में सबसे बड़ी चीज क्या थी? फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. टुडे मेनी ऑफ यू मस्ट बी ट्रैवलिंग आउटसाइड. पहले दिल्ली से चंडीगढ़ आने में टाइम लगता था 6-6.5 घंटे, अब 4 घंटे में पहुंच जाते हो. वैसे ही दिल्ली से मेरठ जाने में बहुत टाइम लगता था, अब 1.5 घंटे में पहुंच जाते हो. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम हुआ है. आने वाले 10 साल इंडिया में जो बूम आएगा वो इंफ्रा में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा. यू विल सी रोड्स, you will see bridges, you will see heavy machinery, you will see defense के कितने orders HAL में जा रहे हैं. So the companies which you can look at यहाँ पे is L&T, Larsen & Toubro. They have got an order book of 1,08,000 crores which has to be executed in 3 years. So ये कंपनी जब ये orders को execute करेगी, इनके पास 1 लाख करोड़ आएगा. तो जब इनके पास 1 लाख करोड़ आएगा तो आप देखो इनका स्टॉक कैसे चलेगा. आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. तो सिंपली दिस इज वन कंपनी विच आई थिंक इज वेरी एडवाइजेबल टू लुक एट. और महंगा सस्ता नहीं देखना है आपने, सिंपल आपने स्टॉक देखना है. आज जो चीज आपको 2700 की लग रही है, अगले 1 साल बाद आप बोलोगे यार. सो दिस स्टॉक मार्केट इज इट्स अ वेरी फनी मार्केट. इट इज अ मार्केट वेर यू ऑलवेज फील बैड. जब आप स्टॉक बेच देते हो आपको बुरा लगता है, शिट यार मैंने बेच दिया अब ये बढ़ गया. जब आप नहीं बेचते तो भी आपको बुरा लगता है, यार शिट मैं बेच देता यार ये गिर गया. तो स्टॉक मार्केट हैज गॉट इमोशंस. और हम सबको पता क्या लगता है, मेरे को भी लगता था पहले जब मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी. हम सब लगता है मैं जैसे स्टॉक खरीदता हूँ ना ये तो गिरना शुरू हो जाता है कि मैं ही इतना मैं इतना बदकिस्मत हूँ, इतना अनफॉर्चुनेट हूँ. मैं जैसे कोई स्टॉक खरीदता हूँ अगले दिन से गिरना शुरू हो जाता है. आप अपनी बैंक FDs को साल में कितनी बार देखते हो? नहीं देखते. आप अपने रियल एस्टेट को, आप घर खरीदते हो, आप कितने प्रॉपर्टी डीलर्स को रोज फोन करते हो कि यार ये स्टॉक बढ़ा नहीं बढ़ा. लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको दिन में 10 बार देखना है तो आपको पैनिक हो जाता है कि आपको लगता है शिट यार कल 10 रुपए का था 8 रुपए का हो गया, आज 8 रुपए का हुआ कल 12 का भी हो सकता है. सो दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग. वी पैनिक. हमें पैनिक नहीं करना बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज फॉर नेक्स्ट 3 years, 5 years, 10 years. आई एम इन्वेस्टर ऑफ 20 years. जो स्टॉक मैंने 2000 में खरीदे थे आज 23 साल बाद भी वो स्टॉक मेरे पास है, मैंने नहीं बेचे हैं. और मैंने वो स्टॉक्स 100 रुपए में देखे हैं. हीरो होंडा इट वेंट टू 3000, इंडियन होटल. तो लॉन्गिविटी मैंने नहीं बेचे हैं बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस है इंडिया पे, मेरा कॉन्फिडेंस है इन वाले स्टॉक्स पे, ये कहीं नहीं जा रहे. अगला सेक्टर विच हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड विच इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म. इस बजट में अगर आप देखो finance ministry has spoken a lot about the way tourism is going to be developed. So one good company which you should look at is Indian Hotels. You should park at least 20% of your money in coming time in hotel industry, in tourism, because potentially India अब एक बहुत बड़ी trajectory बनने वाला है tourism की. Then next sector where you should park your money, 20% money, is on technology. You should definitely have Infosys. You should definitely have TCS. And there is one more company which is going to become a TCS and Infosys in coming time. Dixon Technologies. This stock has fallen 25% in last 1 month. Opportunity to get into it. So these are those few companies, shortage of time, and I respect that. So these are those few companies where you should park your money. If you park your money in these companies,
इन नेक्स्ट 10 years द कॉर्पोरेट अर्निंग्स, सो हम फाइनेंस में क्या करते हैं, हम पैसे की प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, फ्यूचर वैल्यू देखते हैं। फ्यूचर वैल्यू मतलब इस कंपनी की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। ये वो कंपनीज हैं जिनकी फ्यूचर वैल्यू इन कमिंग टाइम बिकॉज ऑफ देयर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ देयर मार्जिन्स is going to be 2x to 10x. So this is the time to invest money. So few indicators in last 2 minutes. If you want to buy a stock, look at cash flow of the company. Simple. नेट के ऊपर आप जाओ, एशियन पेंट्स खोलो, नीचे कैश फ्लो पे टिक करो, आपको दिख जाएगा इस कंपनी का पैसा कितना है। सेकंड चीज, कंपनी के ऊपर डेट नहीं होना चाहिए। जो खुद कर्जे में फंसा हुआ है वो आपको अमीर नहीं बना सकता। तो आप प्लीज, आई डोंट वांट टू नेम अ स्टॉक, यू हैव सीन इट इन लास्ट 10 days, जो स्टॉक कर्जे में डूबे होते हैं वो बबल होते हैं, और इंडिया में ऐसे बबल फूटे हैं और फूटते रहेंगे। ये आपको अमीर भी बना सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। सो हमें बीच का रास्ता लेना है, कभी ब्लैक, कभी व्हाइट, कभी ग्रे। सो हमें कभी भी वो स्टॉक नहीं लेना जिसके ऊपर कर्जा है, हमने नहीं लेना। इन स्टॉक्स पे कोई कर्जा नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। सो डेट फ्री। थर्ड, रिटर्न ऑफ कैपिटल। अगर आपका स्टॉक, ये इजीली दिख जाता है, आप टाइप भी करोगे ना व्हाट इज द रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन गूगल पे जाके L&T, आपको दिख जाएगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल अगर 30% है, बाय दैट स्टॉक, सिंपली बाय दैट स्टॉक, बिकॉज वो आपको सालों साल 30% का रिटर्न हर साल दे रहा है। एंड स्टॉक मार्केट कैसे चलती है, कंपाउंडिंग पे। आपने एक स्टॉक लिया 100 रुपए का, अगले साल वो 10 रुपए का हो गया, तो अगले साल जब वो कंपाउंड करेगा वो 100 पे नहीं करेगा, वो 110 पे करेगा, फिर वो 120 पे करेगा, फिर वो 140 पे करेगा। सो कंपाउंडिंग इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट विच यू शुड नॉट मिस, एंड दैट इज हाउ यू मेक मनी। सो बिकॉज ऑफ टाइम आई गॉट द लास्ट थम्स अप। एनी क्वेश्चंस? I would have loved to speak for next 1 hour, but time doesn't permit. So you think and become rich. Insightful details about the investment market. And जो भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमित साहब जब इस तरह से कहीं लेक्चर देते हैं तो उसकी बहुत हैफ्टी फीस लेते हैं। Okay. ज्ञान जो है फ्री नहीं मिलता, बट वी आर थैंकफुल टू हिम दैट ही agreed to spare his time and take us to uncharted territories of which most of us are very, very unfamiliar. Now, this is one territory where all of us want to be, but we are very scared to tread. And since we are very scared to tread, what do? We put our faith in someone that he just mentioned, that are broking houses. Now, broking houses do give us some interest, or they do get some growth, but you must realize that brokers are earning money by switching your stocks. Any kind of system. Thank you. Thank you everyone. Thank you so much.